Okay, class. So let's start with today's work. Now we need to talk about cost incurrence and logged in cost. Logged in हम थोड़ा बहुत we have some idea what are logged in costs. G, does the name sound familiar? Fixed costs. Fixed cost, and when we were talking about fixed cost, we talked about a particular fixed cost which was committed fixed cost. Do you remember the idea of committed fixed cost? Yes. Committed fixed cost is जो long term की जो change जो चेंज नहीं हो सकता शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में it can be changed, but you will have to change a few things, and then through managerial decisions you can actually change these costs. So these are your committed fixed costs. So now let's talk about cost incurrence and logged in cost. Cost incurrence, what does the name suggest? Cost incurrence, incurred. Which activities incur cost? Cost incurred ना, so it's about cost incurrence यानी जो cost हो गई. So cost incurred organization में कौन सी cost होती है? Incurrence, जो cost भी आप actually incur कर रहे हैं, not necessarily paid, you might pay it in the future, ठीक है, it might be a payable, ठीक है, but you have incurred the cost, which means some resource would need to be paid, cash needs to be paid, and you've got some benefit out of it. Okay, so now this describes when a resource is sacrificed or foregone to meet a specific objective. For example, you buy a marker, ठीक, to sell. You are a retailer, आप retailer हैं, एक चीज़ लेते हैं और वो उसको बेचते हैं. So you have sacrificed a resource, ठीक है, और foregone a resource. अगर मैं ये मार्कर ना खरीदता तो मैं ये मोबाइल खरीद लेता. So foregone, ये resource मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया. And to achieve a specific objective, why? Because I want to sell, I want to increase sales, and I want to have more sales revenue. तो मैं इस वजह से ये चीज़ खरीद रहा हूँ ताकि मैं इसको बेचकर पैसे कमा सकूँ. So this describes when a resource is sacrificed or foregone to meet a specific objective. So in simple words, it's anything where you will incur the cost. कोई भी चीज़ जिस पे आप cost incur कर रहे हैं. अब बहुत सारी activities हैं. Let's start from the very start. When you start, so you actually do some sort of a research. Then you do a product design. Then you start manufacturing a product. Once a product is manufactured, then you want to sell the product. So when you sell the product, you need to do marketing. Then you need to do distribution. So once the product has been sold, you need to provide customer support. So all of these activities, in all of these activities, you will actually be incurring cost. आप cost incur कर रहे होते हैं ना, कभी एक चीज़ पर, कभी दूसरी चीज़ पर. So this is cost incurrence. Clear? Is this thing clear? Okay. Logged in cost. थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आइडिया दिया कि logged in cost is more like committed cost. That means you committed and you will be paying it sometime in the future. आप commit कर चुके हैं लेकिन ये आप future में incur होगी. अभी आप cost incur नहीं की आपने. It's not been incurred कि आप कहें कि अच्छा मैं पैसे दे दूंगा बाद में. नहीं, cost incur नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, something has happened through which you will be incurring this cost in the future. ये आपको करनी पड़ेगी future में. ये cost आपको incur करनी पड़ेगी. In committed cost we talked about fixed assets. कि when we buy fixed assets, we record it as an asset, वो मेरे पास है, but in the future I will have to depreciate it. इसका मतलब cost incur होगी, expense record करेंगे. तो आप expense record करेंगे future में. काम आपने अभी किया, you bought an asset now, but the cost will be incurred, यानी expense will be incurred, will be done in the future. So through this action you have committed this cost. या you've logged in the cost. ये cost lock in हो गई है, ये अब होगी. So logged in costs are those costs that have not yet been incurred, अभी नहीं हुई, but which based on decisions today, आज आपने कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा decision लिया, that have already been made, आज आपने कोई ऐसा decision लिया, will be incurred in the future. So that means these costs will be incurred in the future. You've done something today, you've made a decision, you've made a contract, and now you will have to incur the cost in the future. Design in cost. So this is locked in cost. Clear हो गया? Locked in cost is clear? So would this example be correct कि हम एक चीज़ manufacture करने की process को start करें, उसकी जो आगे आने वाली costs है वो सारी locked in. सारी locked in cost है. अगर मैं अभी एक research कर रहा हूँ और research कर रहा हूँ कि
एक मार्कर कैसे बनाया जाए जो कि बहुत अच्छा हाई टेक मार्कर हो। तो इसका मतलब ये है कि मैं वो सारी कॉस्ट मार्कर की लॉक इन कर रहा हूँ जो फ्यूचर में होंगी। क्यों? क्योंकि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो बस मैं वैसे ही रिसर्च कर रहा हूँ। कल को ये मार्कर बनाऊंगा ना, तो इसका मतलब ये कल को जब ये मार्कर बनाऊंगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी करूंगा, मार्केटिंग भी करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी करूंगा। सो ऑल दोज कॉस्ट ऑटोमेटिकली विल लॉक इन। अभी से लॉक इन हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उसकी रिसर्च कर रहा हूँ। नहीं, रिकॉर्ड तो तब करूंगा जब होंगी ना। नसीर अभी से कैसे रिकॉर्ड करूँ? मुझे क्या पता मटेरियल कितने का खरीदूंगा। लेकिन अभी से लॉक इन हो गई है, यानी मैंने जो आज काम किया रिसर्च का, इससे मुझे पता चल गया कि फ्यूचर में मैं मार्कर बनाऊंगा। तो जब मैं फ्यूचर में मार्कर बनाऊंगा तो उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो अभी से मैंने लॉक इन कर दी है। वो तो इनकर्ड है अभी, वो तो मैं भी इनकर कर रहा हूँ ना। रिसर्च के लिए मैं आपसे कहता हूँ जाओ जाके ये लेकर आओ ताकि मैं देखूँ, ये करो, एक रिसर्च असिस्टेंट रखता हूँ, तो वो तो अभी इनकर्ड है। इनकर्ड वो कॉस्ट है जो आप इनकर कर रहे हैं अभी, ठीक है। पैसे आप 1 महीने बाद देंगे असिस्टेंट को, लेकिन इनकर तो आपने कर दिया ना कॉस्ट, उसकी तो कॉस्ट हो गई। लेकिन ये जो लॉक इन कॉस्ट है ये मैंने कुछ नहीं किया अभी, लेकिन जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसका मतलब ये बस खाली मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं रिसर्च इसीलिए कर रहा हूँ कि कल को मैं मार्कर बनाऊंगा, तो जब बनाऊंगा तो उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो सारी लॉक इन हो गई अभी से, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेकिन बस लॉक इन है, ये कॉस्ट फ्यूचर में होगी। इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑल्टर और रिड्यूस कॉस्ट दैट आर ऑलरेडी लॉक्ड इन। डिफिकल्ट टू ऑल्टर। आप सारी रिसर्च आप कर लें मार्कर की और आप कहें यार मार्कर नहीं बना था, then it's difficult to alter. You cannot do it. You've incurred cost on R&D so that you can come up with a research on markers that would be a high-tech marker. But now you are saying you are not doing it. नहीं, it's difficult to alter this decision. To take this decision ये बड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि मैंने इतना टाइम ज़ाया किया, इतना पैसे इनकर किए हैं इसके ऊपर। So it is difficult to alter और reduce cost. Reduce भी नहीं। आप कहते हैं बस नहीं यार चलो 100 मार्कर बना दूंगा। क्यों बनाऊंगा यार, मैंने इतनी रिसर्च की है, 6 महीने ज़ाया किए हैं, मैं तो पूरी इंडस्ट्री पूरी फैक्ट्री लगाऊंगा मार्कर की ताकि इतने अच्छे मार्कर बनाऊं ताकि लोगों को बेचूं। सो इट्स डिफिकल्ट टू ऑल्टर और रिड्यूस कॉस्ट दैट आर ऑलरेडी लॉक्ड इन। जी, नहीं, यू कैन नॉट क्वान्टिफाई इट, बट यू हैव सम आइडिया, व्हाट विल बी द कॉस्ट। इसमें वो कॉस्ट इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी क्वांटिटी वाइज मेजरमेंट ना हो सके। फॉर एग्जांपल क्यों नहीं हो सकती? ना, टाइम कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज टाइम इज एक्चुअली नॉट अ कॉस्ट ओवर हियर। इज टाइम अ कॉस्ट इन अकाउंटिंग? कैन यू रिकॉर्ड इट? नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो फिर भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, yes, opportunity cost is there. I could have done something else, but then the problem is the same. It cannot be quantified and I cannot record it. Okay? So now let's look at all of these functions. I said when we start from R&D. सबसे पहले R&D करता हूँ, research. Then I make a design. Then I start manufacturing the product. I manufacture the product, I market the product, I distribute the product, and finally I provide customer services. So these are actually all those business functions which will be performed. सारे functions हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं right from the start till the very end. Okay? ये सारे हो गए हमारे बिजनेस के फंक्शंस या वैल्यू चेन के फंक्शंस जहाँ पे we will be adding value to the product. Now over here we have costs. यहाँ पे सारी कॉस्ट है डॉलर अमाउंट में, ठीक है, रुपीज़ में. Now as we move along, हम जो ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, तो शुरू में देखिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, तो हमने कहा जब रिसर्च कर रहा हूँ तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो इनकर हो रही है, ठीक। सो आई एम इनकरिंग कॉस्ट, कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ। R&D तक कॉस्ट कम है ना, सिर्फ रिसर्च की कॉस्ट है बस, और कोई कॉस्ट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट नहीं है, सो इट्स ओनली रिसर्च कॉस्ट. बट एट द सेम टाइम व्हेन आई एम डूइंग रिसर्च ऑन मार्कर्स, सो आई एम एक्चुअली कमिटिंग कि फ्यूचर में कॉस्ट होगी मेरी मैन्युफैक्चरिंग वाली सारी, तो इसका मतलब मेरी लॉक्ड इन कॉस्ट ज़्यादा है, लॉक्ड इन कॉस्ट ज़्यादा है, अप टू द पॉइंट वेयर माई R&D और रिसर्च, मेरा रिसर्च या उसका डिज़ाइनिंग इज़ डन. वंस द डिज़ाइनिंग इज़ डन, डिज़ाइन हो गया, अब मैंने ये प्रोडक्ट बनाना है, अब वो जो मैंने कहा था ना कि कॉस्ट इनकर करूंगा, अब वो सारी कॉस्ट इनकर होंगी. सो दैट मीन्स ऑल ऑफ अ सडन कॉस्ट इनकर्ड वुड इंक्रीज, कॉस्ट इनकर्ड इंक्रीज होगी. मटेरियल खरीदूंगा, मशीन खरीदूंगा, बिल्डिंग में जगह बनाऊंगा, और स्टार्ट प्रोडक्शन, एम्प्लॉइज को हायर करूंगा, ओवरहेड्स इनकर होंगे, सो कॉस्ट इनकर्ड वुड इंक्रीज. ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड वुड इंक्रीज एंड इट विल
rise at a very sharp rate. ये इंक्रीज हो जाएगा. Now at this point in time my locked in cost would decrease, क्योंकि अब आगे की लॉक्ड इन कॉस्ट क्या है. अब अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है तो अब मेरे दिमाग में होगा यार आज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो कल ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट लॉक्ड इन हो गई, साथ साथ कस्टमर सर्विस की कॉस्ट लॉक्ड इन होगी. तो इसका मतलब यह है कि लॉक्ड इन कॉस्ट भी ज़्यादा होगी बट एट अ स्लो रेट. उसका रेट इतना तेज़ नहीं है, इसका रेट तेज़ है कॉस्ट इनकर्ड का. So let's say I reach at this point where I have done all my manufacturing. Manufacturing complete हो गई. अब इसके बाद मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर सर्विस के काम शुरू हो गए. अब इससे पहले वो लॉक्ड इन में थी, अब वो कॉस्ट इनकर करना शुरू कर दूंगा क्योंकि अब मैंने प्रोडक्ट बना दिया है. अब आई विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट और मार्केटिंग इट. सो वंस अगेन माई कॉस्ट विल इंक्रीज. कॉस्ट इनकर्ड फिर इंक्रीज करेगा शार्प. और वहाँ पर जो लॉक्ड इन कॉस्ट है, अब मैं चूंकि अब अगले फेज का सोचूंगा कि अब ये तो मैंने बना दिया, नाउ आई नीड टू इम्प्रूव. इसका मतलब ये है कि कल को मैंने और रिसर्च करनी है इसके ऊपर, तो मेरी अगले रिसर्च या जो इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट है वो आ जाएगी. सो वंस अगेन दैट कॉस्ट विल लॉक्ड इन कॉस्ट वुड इंक्रीज. सो दिस इज हाउ लॉक्ड इन कॉस्ट और कॉस्ट इनकर्ड विल चेंज ओवर the life of a product or over the value chain. कि value chain में किस तरीके से locked in cost या cost incurred change करेगा. I'll be asking you graphs in the exam. ठीक है, last time भी पूछा था ना, ठीक नहीं पूछा था, पिछले एग्जाम में था, पिछले एग्जाम में बहुत थे, इस एग्जाम में भी होगा जी. किस तरह किस तरह मतलब एक लोन हम एक फॉर्म में दे रहे हैं या लोन, तो जब आप ले रहे हैं तो आप उसका इंटरेस्ट पे करेंगे ना या उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे. सो यू आर लॉकिंग इन द कॉस्ट. यस. और एक कंपनी है उसने लोन दिया, मतलब वो कॉस्ट सब पे लॉक इन हो गया. हाँ, लॉक्ड इन हो गया कि वो इसकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा और इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा. इंटरेस्ट का कॉस्ट हाँ लॉक्ड इन हो गया. ओके, इज दिस थिंग क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन. कॉस्ट इंक्रेंस एंड लॉक्ड इन कॉस्ट, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ. सो वी विल क्विकली गो थ्रू इट. एट द एंड ऑफ द डिजाइन स्टेज, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लेबर एंड मेनी मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर सर्विस कॉस्ट आर ऑल लॉक्ड इन. जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो शार्प इंक्रीज आ रहा है ये आपका लॉक्ड इन कॉस्ट का है. ये भी हो गया. नेक्स्ट, when a sizable fraction of the costs are locked in at the design stage, the focus of value engineering is on making innovations and modifying designs at the product design stage. जब मैं ये product design stage पे होता हूँ तो फिर I think about product design stage, I think about value engineering, जो हम लोगों ने target pricing में पढ़ा था, हम वो करते हैं. इसका मतलब we want to decrease cost and I'll have to look at all the cost functions again, the value chain again, value chain functions, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी cost को reduce करूँ. So once again यहाँ पर आपकी locked in cost would increase. ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ. So this is about locked in cost and cost incurred. Clear है? Clear? Now let's move on to cost plus approach. Cost plus approach इसी चैप्टर में मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ. हम लोगों ने cost plus approach के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? What do we talk about cost plus approach? Cost plus markup. ठीक है. So selling price is actually made of cost plus a markup of profit, and this markup is normally a percentage of sales or cost. तो हमने कहा था कि ये भी हो सकता है कि सेलिंग प्राइस में आपको क्वेश्चन दूं और मैं आपको कुछ कॉस्ट दे दूं और मैं आपसे कहूं कि दिस मार्कअप इज सम परसेंटेज ऑफ कॉस्ट. ठीक है. और मैं ये भी कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस आपको ना दूं, कॉस्ट दे दूं, एंड आई टेल यू दैट दिस मार्कअप इज सम परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस. याद है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया था. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट and you will get it inshallah in your exam. Okay, so now cost plus pricing. Now in cost plus pricing, the general formula for setting a cost based price is to add a markup component to the cost base, just like I did over here. So selling price equals cost plus a markup or profit. This is the cost base, this is your markup. So selling price will comprise of both of these, x plus y. Got the idea? Got the idea? Assume that Letitia's
engineers have redesigned CC into CCI at a new cost of 637.5. If you remember, in this chapter we were taking the example of this Letitia computers और इसके हम लोग complex computer की discussion कर रहे थे CC. अब वो कह रहे हैं कि CC को मैं redesign करके CCI बना रहा हूँ. CC का if you remember हमारे पास कुछ cost आया था और हमने फिर उसका कुछ target cost भी find out किया था. Now the new cost of CCI is 637.5. So if 637.5 is the cost, so that means some profit will be added to it, which will comprise of selling price. So let's see. Now it says the company desires a 20% markup on the full unit cost. 20% markup. So what will be 20% markup? What will be 20% markup on cost? Cost के ऊपर 20% markup कितना बनेगा? 27.5. 21.5. 127.5. नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? खाना नहीं खाया? नहीं? ब्रेक में कुछ नहीं खाया? नसीर हॉस्टल किसने? कैफे के हॉस्टल तने से बोले? Yes. So we don't have a class. We have a class on Monday at 10 o'clock. And 10 o'clock is the first class on Monday. Yes. यही क्या है? देखिए अवैस it's an advice, financial advice. If you incur cost on one patila of Gadivri, you can satisfy two classes, which means Suhail's class and my class. True. So that means you can save on cost. Otherwise you will have to incur cost over there and then incur cost here again. So that means double the cost. This is a financial advice. It's a very good advice. Think over it. पतीला जुल्म है. पतीला क्यों जुल्म है? पतीले में कितने 5 किलो चावल आएगा? 5 kilo and it's almost 210 Gadivri. It's somewhere around 200. It's not more than 200. I can confirm it. Okay. Let's start class. Let's come back. Pay attention class, pay attention. So now, if the profit is 20% markup on the full unit cost, that means selling price would be 765. So let's check. What is the prospective selling price? Cost base, markup component, prospective selling price is 765. Take easy. Let's move on. Assume that the capital investment needed for CCI is $75 million. Now the investment needed for CCI. Investment is basically what you are putting in your business. So this is the investment, which is $75 million, and the company pre-tax target rate of return on investment. This is what you want to get on your investment. मैं $75 million बीच में लगा रहा हूँ to make CCI, and I need target. I'm expecting, or I want rate of return on my investment as 17%. So then, what is the target annual operating income that Letitia needs to earn from CCI? Come on, calculate. $12.75. So it's 75 million. How do you write 75 million? 75? 6 zeros. Okay. So 75 million, and your target rate of return on your investment is 17%. So you find out 17% of 75 million, which is equal to
12.75 or 12,750,000. So this is what you need to earn from CCI if you want to have a 17% target rate of return on investment. What is the target operating income per unit? Target operating income per unit. Target operating income per unit. This was your target operating income. So now you need to convert it into per unit. How many units will you be selling? याद है? इस क्वेश्चन में याद है? 100,000 है ना? याद आया किसी को? Do you remember? You don't remember 100,000? Okay, so let's go back. And if you remember, we did this. ठीक है? So what is the cost of producing 100,000 units of complex computer? So now you've changed from complex to CC to CCI. So that means you are making a total of 100,000 units. So if you are making 100,000 units, so that means your target operating income per unit would be equal to 127.5. 127.5. You will divide it by 100,000 and you will get 127.5 per unit. सही? ये भी सही हो गया? Okay. The 17% target rate of return on investment expresses the company's expected annual operating income as a percentage of investment. So this 17% actually tells you कि आपने कितना पैसा लगाया और उसके ऊपर आप कितना वापस मांग रहे हैं. ठीक है? So the 17% target rate of return on investment expresses the company's expected annual operating income. कि वो क्या चाहता है कि कितना उसको मिले. Expected annual operating income as a percentage of investment. ये इसका कितना परसेंट है? 17. तो कंपनी क्या चाहती है कि 17% इसके ऊपर कंपनी को मिले. So this is your and this amount which if converted into per unit, कि कितने यूनिट बनाऊंगा इन पैसों से, जो मैं इतने पैसे लगा रहा हूं तो मैं कितने यूनिट बनाऊंगा, तो पर यूनिट इतने कमाऊंगा तो फिर मैं इतने पैसे बनाऊंगा. फिर मेरा जो 17% का टारगेट है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका 17% मुझे रिटर्न मिले, वो पूरा हो जाएगा. गॉट दिस आइडिया? ओके. The 20% markup expresses operating income per unit as a percentage of the full product cost per unit. और इसके साथ हमने थोड़ी देर पहले एक और चीज़ बात की थी कि 20% is your markup component when you do a cost plus pricing. वहाँ पे हमने कहा कि if you want to earn 20% of the cost per unit, कि अगर एक चीज़ मैं बनाता हूँ और उसके ऊपर कुछ कॉस्ट आती है, तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि उस कॉस्ट का 20% कमाऊँ, तो फिर वो बनता था मेरे पास 127.5 per unit. That 127.5 per unit was the amount which I wanted to earn on each product over cost. कॉस्ट के ऊपर मैं कितना कमा रहा था, और ये जो है this is the amount which I want to get when I invest a specific sum of amount, और मैं कहता हूं कि मैं उसके ऊपर रिटर्न मांगता हूं 17% का. So over here the amount is the same, but these are actually two different concepts. ये दोनों दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है. एक रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक है एक्सपेक्टेड मार्कअप या टारगेट मार्कअप या टारगेट प्रॉफिट ओवर कॉस्ट, कि कॉस्ट का कितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं. क्लियर? दोनों चीजें क्लियर हो गई? ओके. फुल कॉस्ट. नाउ व्हाट इज फुल कॉस्ट? व्हाट इज फुल कॉस्ट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, या व्हाई कैलकुलेशन ऑफ फुल कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट? 2 minutes, not more than 2 minutes. So now let's talk about full cost. So when we calculate the full cost of a product, so that means actually not only the variable cost, the fixed cost, all the costs which are incurred. So when we calculate a full cost, why is it good? It's good because when we come up with a price which is in accordance with the full cost, we can recover all the costs plus make profits as well. Full recovery of all cost of the product is possible. Why? Because then we are looking for a profit over the cost. तो फिर मैं उस कॉस्ट को भी कवर कर दूंगा, मैं प्रॉफिट भी कमा सकता हूं. इसका मतलब ये है कि मेरी सारी की सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी. मैन्युफैक्चरिंग भी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, पीरियड कॉस्ट भी, सारी कॉस्ट कवर हो सकती है. सो इट्स अ गुड मेजर. एंड इफ आई डू इट लाइक दिस,
if I do it like this, if I cover all the cost, manufacturing, non-manufacturing cost, and then I make a profit as well, so that means my price would remain stable, because then I won't have to increase the profit margin or the price to get a target profit margin. अब अगर मुझे पता है कि इसके ऊपर सारी कॉस्ट 50 रुपए है, जिसमें हर किस्म की कॉस्ट इंक्लूडेड है, और 10 रुपए मैं इसके ऊपर प्रॉफिट भी रख रहा हूँ, 60 रुपए हो गया। अगर कल को कोई कॉस्ट इंक्रीज भी होती है अ लिटिल बिट, तो मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट डिस्टर्ब होगा, बट आई वोंट हैव टू डिस्टर्ब द प्राइस, सो द प्राइस वुड बी relatively stable. ओके, एंड इट्स वेरी सिंपल। किस तरह? बस यार इस पर कितना पैसा खर्चा हुआ है, सारा का सारा जितना भी पैसा आपने लगाया है, बस उसके ऊपर प्रॉफिट रखें और आराम से काम करें। आप क्या कहते हैं, मार्केटिंग अलग करूं, इसको अलग करूं, उसको अलग करूं, ये बहुत मुश्किल है। सिंपल, सारा खर्चा कितना है, यूनिट्स कितने हैं, डिवाइड करें, यू विल गेट द कॉस्ट, इसके ऊपर 10 रुपए प्रॉफिट रखें, बेचें। सो इट्स एज सिंपल एज ABC। ऑल्टरनेटिव कॉस्ट प्लस मेथड्स, इसके अलावा कौन से मेथड्स हैं? इसके अलावा वी हैव वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यू नीड लुक एट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, विच मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, और इसके साथ प्लस मार्कअप ऐड करें और बेचें। अदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट की, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, सारी की सारी आप कैलकुलेट करें और फिर करें। मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन कॉस्ट, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, विच वुड इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको करें और फिर आप साथ प्रॉफिट ऐड करें और बेचें। सो दीज आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. Okay, life cycle budgeting and costing when making pricing decisions. Life cycle budgeting. Do you understand the concept of life cycle? Life cycle budgeting and costing when making pricing decisions. पूरा साइकिल तो है। लाइफ साइकिल हम छोटे होते थे, हम देखते नहीं थे, वी वुड स्टडी लाइफ साइकिल्स। सो लाइफ साइकिल क्या चीज़ बता रही होती है आपको? हर एक पॉइंट पे वो चेंज वैल्यूएशन, ठीक है, पूरा के पूरा उसकी लाइफ कितनी है। इफ यू रिमेंबर वी वुड स्टार्ट विद लार्वा, याद है, कैटरपिलर, और फिर वो बटरफ्लाई बनती है और फिर होते 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 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज नाउ अबाउट अ प्रोडक्ट। Now this is about a product. So life cycle budgeting. What would this budgeting mean? अब इसका बजट क्या मतलब? इसका बजट का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट जब हो, स्टार्ट प्रोडक्ट कहाँ से होता है? It starts from R&D, and R&D, design, manufacturing, marketing, distribution, customer support. फिर उसके बाद you keep on improving the product. And then a time comes when your product actually dies. When a product actually dies. डिसकंटिन्यू कर देते हैं, या कम से कम हम उसकी सपोर्ट डिसकंटिन्यू कर देते हैं। वो प्रोडक्ट का एक्सटेंडेड वर्जन आ जाता है, बट दैट प्रोडक्ट एक्चुअली डाइज। वो प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट इनोवेट हो जाता है, कुछ और चीज़ उसकी जगह आ जाती है, जिस तरह 86 करोला। सो डिसकंटिन्यूड सपोर्ट। कंपनी के पास भी आप ले जाएं, इसका कुछ ख़राब हो गया, वो कहेंगे यार ये तो हमने बनानी जितने अरसे से पहले छोड़ दी, इसकी सपोर्ट ही ख़त्म कर दी है, ठीक है, इतने पुराने मॉडल को हम सपोर्ट ही नहीं करते। इफ़ यू टेक 2005 मॉडल टू द फैक्ट्री, तो शायद वो कहे कि हाँ इसके ये पार्ट्स अभी भी अवेलेबल हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट है इसकी, लेकिन इसकी कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होगी। इट डज़ नॉट मीन दैट करोला हैज़ एक्चुअली डाइड, लेकिन वो इनोवेट होके नए मॉडल्स में आ गई है, लेकिन वो जो पुराना मॉडल है उसकी सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट हमने सर्विसेज ख़त्म कर दी हैं। ओके, सो नाउ लाइफ साइकिल बजटिंग मीन्स द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, विच इज़ दिस लाइफ साइकिल, ये जो सारा साइकिल है, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्पेंड्स द टाइम फ्रॉम ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड थ्रू सेल्स टू व्हेन कस्टमर सपोर्ट इज नो लॉन्गर ऑफर्ड फॉर दैट प्रोडक्ट, जब कस्टमर सपोर्ट उस प्रोडक्ट का खत्म हो जाए। सो दिस इज दी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये हो गई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बजटिंग का क्या मतलब हो गया? अ लाइफ साइकिल बजट, इट एस्टिमेट्स रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। बजट में दोनों चीज़ होती है ना,
रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, कितने पैसे आएंगे कितने पैसे जाएंगे। अब आपने वो कब बताना है कि पूरी लाइफ में, प्रोडक्ट की पूरी लाइफ में R&D से शुरू होके जब मैं उसकी सपोर्ट ख़त्म कर दूं कितने साल होंगे। इस पूरी लाइफ में लाइफ साइकिल बजट एस्टिमेट्स, रेवेन्यू कितने पैसे इससे मैं कमाऊंगा एंड कॉस्ट कितने पैसे इसके ऊपर लगाऊंगा ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर इट्स इंटायर लाइफ, इस पूरी लाइफ में। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल बजटिंग। क्लियर? लाइफ साइकिल बजट क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव ऑन। लाइफ साइकिल बजटिंग, नाउ फीचर्स दैट मेक लाइफ साइकिल बजटिंग इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ये क्यों जरूरी है? पूरी लाइफ में यार प्रोडक्ट कितना चलेगा, कितने साल चलेगा, इट्स डिफिकल्ट टू एस्टिमेट ना। कितने पैसे लगेंगे उसके ऊपर, कितनी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, कितने पैसे उससे कमाऊंगा, कितनी डिमांड है उसकी पूरी लाइफ में इट्स डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। बट देन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? व्हाई आर वी डूइंग इट? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके, रिमेंबर वी हैव नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट सारी नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, खत्म। इसके अलावा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस की कोई कॉस्ट है मेरे पास, ठीक है, ये सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। अक्सर प्रोडक्ट्स की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है लेकिन उनकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है। सो इन दोज केसेस दीज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट एस्टिमेट दीज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या उसका आप बजट नहीं करते, सो यू कैन नॉट डू अ फुल प्राइस। आप फुल प्राइसिंग नहीं कर सकते, आप उसकी फुल कॉस्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो नॉन प्रोडक्शन लाइफ साइकिल बजटिंग इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। डेवलपमेंट पीरियड फॉर R&D एंड डिज़ाइन। इफ आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट और उससे पहले मैं R&D कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, एंड आई डू नॉट एस्टिमेट कि इस पूरे लाइफ में इसका क्या होगा, तो मुझे नहीं समझ आनी कि इसके ऊपर कितना पैसे अभी लगाऊं। इफ़ आई कैन एस्टिमेट, इफ़ आई कैन सी कि यार ये मार्कर बहुत आगे जाएगा, मैं इसको 10 साल तक बनाऊंगा और ये 10 साल तक बिकेगा और इससे इतने पैसे कमाऊंगा, ओनली देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस डेवलपमेंट पीरियड and you can incur cost at this stage and you can incur a high cost because you know you will be getting revenues out of it. लेकिन अगर आपने वो लाइफ साइकिल बजटिंग नहीं की हुई, सो यू वुड हैव नो आइडिया कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर होगी, एंड देन इन द डेवलपमेंट पीरियड यू विल बी क्लूलेस। क्या पता मैं इसके ऊपर इतने पैसे लगा दूं, मार्कर बन जाए, अच्छा बने, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो मार्कर, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, वो मार्कर ख़त्म, तो फिर तो आपने उसका बजट ही नहीं किया कि उसकी लाइफ कितनी बड़ी है और कितने पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। सो देन योर डेवलपमेंट पीरियड कॉस्ट वुड एक्चुअली बी गॉन, वो आपको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदर प्रेडिक्टेड कॉस्ट, कुछ और कॉस्ट जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसकी लाइफ में होगी, अगर वो आपके पास नहीं है तो भी आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग या कॉस्टिंग नहीं कर सकते। Now, non-production cost, what are these non-production costs? These costs are less visible on a product by product basis. I do not know कि इसके ऊपर एडमिन की कॉस्ट कितनी है, नहीं देख सकता, इसके ऊपर मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी है, नहीं पता चलती, बट दीज कॉस्ट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक अप अ ह्यूज पोर्शन। When non-production costs are significant, identifying these costs by product is essential for target pricing, target costing, value engineering, and cost management. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये सारी कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर ज़्यादा हो जाती हैं। सो व्हेन दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर मोर, देन दे क्रिएट प्रॉब्लम। अगर वो थोड़ी सी है, इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, बट व्हेन दे आर मोर, इट वुड क्रिएट प्रॉब्लम बिकॉज देन आइडेंटिफाइंग दीज कॉस्ट वुड मेक श्योर you have an accurate price, target price, a target cost, you can do value engineering, reduce the cost, and you can do cost management. Cost को आप control कर सकते हैं, otherwise you cannot if you do not have an idea कि non-production cost कितनी है. So non-production costs are important whenever you are doing life cycle budgeting. Development period, हमने कहा था ये वो वाला period है जो यहाँ पे शुरू में होता है, R&D and design वाला. So when a high percentage of total life cycle costs are incurred before any production begins and before any revenues are received, it is crucial for the company to have as accurate a set of revenue and cost predictions for the product as possible. Let's say I am doing research on a product और मैं इसके ऊपर पैसे लगा रहा हूँ, but I do not know कि इससे मैं कितने पैसे कमाऊँगा,
तो अगर मुझे नहीं पता होगा तो फिर मैं इस कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता। याद रखें कि ये जो कॉस्ट मैं यहाँ पे इनकर करता हूँ ये एक्सपेंस आउट करनी पड़ती हैं, लेकिन स्टिल आई शुड नो दैट आई वुड बी एबल टू रिकवर दीज कॉस्ट थ्रू सेल्स ऑफ माई प्रोडक्ट। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट की लाइफ ही 1 साल हो 2 साल हो तो फिर मैं कवर नहीं कर सकूंगा। सो व्हेन अ हाई परसेंटेज ऑफ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट आर इनकर्ड बिफोर एनी प्रोडक्शन बिगिंस, प्रोडक्शन से पहले आप मिलियंस लगा दें, इतनी हाईटेक चीज आप बना रहे हैं, देन इट इज क्रूशियल फॉर द कंपनी टू हैव एज एक्यूरेट, फिर एक्यूरेटली आपको देखना पड़ेगा कि कितने रेवेन्यूज कितनी कॉस्ट इस प्रोडक्ट पे लगेंगी। गॉट दिस आइडिया? Predicted cost. Many of the production, marketing, distribution and customer service costs are locked in during the R&D and design stage. This is what we have discussed earlier. हम लोग जब R&D कर रहे होते हैं, so we lock in all of these costs. Life cycle budgeting facilitates value engineering at the design stage before costs are locked in. Life cycle budgeting में आप क्या करते हैं कि value engineering को support करता है at design stage before costs are locked in. अगर आपको पता होगा कि लाइफ साइकिल बजट में कितने पैसे लगेंगे और कितने पैसे आएंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू वैल्यू इंजीनियरिंग बिफोर कॉस्ट आर लॉक्ड इन। नाउ कंसीडर अ लाइफ साइकिल एवरेज सेल्स प्राइस ऑफ 55,000 पर यूनिट। अब अगर पूरी लाइफ साइकिल आपको बता रहा है कि 55,000 सेल्स हैं, 55,000 सेल्स हैं, एंड if the desired life cycle contribution is 45%, आप चाहते हैं कि लाइफ साइकिल, पूरा लाइफ साइकिल उसकी कंट्रीब्यूशन 45% हो। सो व्हाट इज द अलाउएबल कॉस्ट ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट? अलाउएबल कॉस्ट कितनी होगी ओवर दिस एंटायर लाइफ साइकिल? जी, कैलकुलेट क्लास। इफ द होल लाइफ साइकिल सेल्स is 55,000 and you want a 45% contribution out of it, so what is the allowable cost? कितनी कॉस्ट इसकी होनी चाहिए ओवर दी लाइफ साइकिल? इस पूरी लाइफ साइकिल में कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? जी क्या सर? कितनी? 30,000। किस तरह? 30,250. 30,250. 30,250. How did you calculate? 45% contribution है. So this is equal to 45% equals 24 what? 24,750 minus 55. So that would make 30,250. Okay, so 55,000 minus 45% of 55,000, so 30,250. सही? Clear हो गया? This is the allowable cost. Describe 2 pricing practices in which non-cost factors are important when setting prices. We still have 5 minutes. ये 2 कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े से हैं, सिर्फ 2 हैं। इन दोनों के नाम सुने कभी? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पीक लोड प्राइसिंग नहीं, कभी नहीं सुना? तो फिर तो अच्छा है आप इसको सुने आज खाने के बाद। ओके पॉज। अच्छा, खाना